Hello student, so welcome to the channel. In the previous lecture we have completed surface area and volume PYQs. Now in this session we are going to start our new chapter, that is trigonometry, which is very important as it contains 10 to 12 marks, I guess. Okay, so there are lots of questions in this, so it will take 3 lecture at most, I think. Okay, so let's begin without wasting any time. Our approach will be the same as I have already told you. First, reading the question completely and to understand it. Okay, so what the question is saying: if 2 tan A is equal to 3, then the value of 4 sin A plus 3 cos A divided by 4 sin A minus 3 cos A is A, B, C, D. Okay, now I can solve the question easily. It is nothing, but if I am here, I want to tell you something. If you look at this expression, it gives you sometimes symmetry. इसमें कुछ symmetry दिख रहा है. It will give you a crisp of symmetry. 4 sin A, 3 cos A, 3 cos A. Here is only plus, here is minus. So only difference lies in addition and subtraction in the numerator and the denominator. Okay. So in this type of question, if you have given tan A, so there is a specific purpose for giving this thing. Okay, so you will find that tan A is equal to 3 by 2. Okay, easily, nothing so rocket science. Okay, so this you can find easily. Now you can make a triangle. Either you can do in this way, that this is your angle A, so this will be perpendicular and this will be the base. Okay, you can say that 3 will be the perpendicular, 2 will be the base. So 3 is perpendicular, 2 is the base. You will find that 9, 4, 13 your hypotenuse. You can find here from easily find, you can easily find sin A. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Okay, and cos A will be base upon hypotenuse, 2 by root 13. You can easily do that. That is also a way. You will solve it, you will get the answer, nothing else. There is no difference in finding. There are lots of methods. I am going to tell you the another method, and you have to try the another method. Okay, why? Because it gives a kind of what you say, that intelligentsia, that is critical thinking. Okay, it will make your brain to exercise. Okay, now this is brute force method and nothing else. Now consider this equation. What it is written: 4 sin A plus 3 cos A divided by 4 sin A minus 3 cos A. What you have to do is, you have to divide the numerator and denominator from cos A. Why? Because sin A upon cos A will give you tan A. Okay, so if you divide numerator and denominator by cos A, you will get 4 tan A. Okay, let me erase this. And okay, it will give you 4 tan A minus 3 cos A by cos A is equal to 1. 4 tan A minus 3. Okay, here numerator and plus. Okay, now what we can say, that 4 into 3 by 2 plus 3 divided by 4 into 3 by 2 minus 3. Okay, so you can easily find out the answer. 2 to the 4, 2 3 is 6 plus 3 9, 2 to the 4, 2 3 is 6 minus 3 is equal to 3. It will give you 3. And if you apply this one and this one by substituting, you will get the same answer. No difference in the answer. Okay, so 3 is the answer. And let's get back to the another question. What it is telling, that 3 by 4 tan square 30 minus sec square 45 plus sin square 60 is equal to, you have given 4 options, you have to find the answer. Okay, so you have to only put the values. Okay, tan 30 is equal to 1 by root 3. Okay, and sec 45, cos 45 is equal to 1 by root 2, so sec 45 is equal to root 2, and sin 60 is equal to 1 by 2, sorry, under root 3 by 2. Okay, you can put the values and you can easily get the answer, nothing else. These are the simplest question. Okay, this comes in easy, they belong to the easy level. ओके, इन सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये सब करके आएंगे, सब आपको भी ये करके आना है. ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन छोड़ने नहीं है. ठीक है, और एमसीक्यू तो एक भी नहीं छोड़ना है. कुछ नहीं आ रहा तो सीसी सब में से ही मार देना, और कुछ नहीं. अगर नहीं आ रहा है तो 5 क्वेश्चन बचे हैं, नहीं आ रहा है समझ में, सब में से ही मार देना.
ठीक है, छोड़ के मत आना, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो, ठीक है ना। what we is given is if sin theta plus cos theta is equal to root 3 then find the value of sin theta into cos theta. Okay, I am solving this one and later we will look to the B part. Okay, first solve the A part. Sin theta plus cos theta is equal to root 3 then find the value of sin theta into cos theta. Okay, now अब इसको समझना कैसे है, sin theta और cos theta कैसे आ जाए, या तो sin theta cos theta की वैल्यू पता चल जाए तो भी कर सकते हैं, सही है। दूसरा, साइन थीटा और कॉस थीटा को ऐसे नहीं देखते हैं, इनको ना ऐसे देखते हैं, इसको देखो ए की तरह और इसको देखो बी की तरह। और हमेशा ये मैं बोलना भूल गया स्टार्टिंग में, ट्रिग्नोमेट्री को ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री सेपरेट चैप्टर मत ट्रीट करो। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्स अलजेब्रा ऑल्सो, कंप्लीट अलजेब्रा। इसमें ए प्लस बी जैसे होता है यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब भी ए प्लस बी का होल क्यूब की तरह ही ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ऐसे देखा करो इसको। तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हियर इज ए बी, इफ़ योर ए इज साइन थीटा एंड बी इज कॉस थीटा, you can easily infer that sin theta into cos theta will be referred as a into b. Okay, so you have to do nothing, you have to square this equation for both side. What you will get? You will get sin theta plus cos theta whole square is equal to under root 3 square. You can expand easily, sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta, and in the right hand side you will get 3. Okay, now you have an identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, you can easily put 1 plus 2 sin theta cos theta is equal to 3. Sin theta cos theta is equal to 3 minus 1 by 2 is equal to 1, I guess 1. Okay, sin theta into cos theta is equal to 1. Now you will get the desired answer for the question. Now let's get back to the second question, what it is telling. Is there any space? Okay, I will solve it in other color. Okay, now what is telling us, sin alpha is equal to 1 by root 2, 1 by root 2, and cot beta is root 3, cosec alpha and cosec beta. Okay, now sin alpha is, okay, sin alpha, what is the value for, means which degree will you put in place of alpha so that you will get 1 by root 2. You always know that table 0, 30, 45, 60 and 90 degree, you have to memorize that. Okay, and nothing else. So for the sin 45 degree you will get the same 1 by root 2. So comparing 1 and 2, you can say that alpha is equal to 45 degree. Same cot beta is equal to root 3, and also cot 30 degree is equal to root 3. Okay, tan 30 1 by root 3, so cot 30 will be root 3. So we can say that beta is equal to 30 degree. Okay, you get the value of alpha and beta, you can easily put it there. Cosec 45 degree plus cosec 30 degree, easy. Cosec 45 means 1 by sin 45. Sin 45 is 1 by root 2, so you can say that this is root 2 plus 1 by sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So you will get the desired value of this, which is 2 plus root 2. Okay, this also comes in the easy section. Okay, both question are easy part. Okay, there is no rocket science in this. Now let's back to this one. Tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is equal to 1 plus sin theta by cos theta. This is a question from NCERT. हर बार पूछते हैं, आगे भी पूछते रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई बच्चा फेल ना हो, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो बना के आए, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको वैसे ही यहाँ पर ही वही करना है, ठीक है। तो 1 है ये हमारे पास, सिमेट्री दिख रही है यहाँ पर भी। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, 1 को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा? अब दिखना ही चाहिए ये सब, ठीक है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री बना रखे होगे तो a स्क्वायर
minus b square. You will get a plus b into a minus b. Sec theta plus tan theta and sec थीटा इंटू माइनस टेन थीटा. मैं नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस टेन थीटा. ठीक है, ये हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई ना. हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसे पुट करेंगे. न्यूमरेटर में वैसे ही रहने देते हैं. ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस 1 है तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा. LHS RHS लिख लेना, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कि LHS उठाया है मैंने, लिख लेना यहाँ पे. LHS को प्रूव कर रहा हूँ मैं भी. ठीक है, LHS को फिर RHS के बराबर कर दूंगा. चलो, ये हमारा इक्वेशन आ गया. देखो यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा है. अगर यहाँ पर से लूँगा तो माइनस के साथ कॉमन आएगा. तो ठीक है, चलो करते हैं वही काम. न्यूमरेटर में हमें कुछ करना है नहीं. टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ले लो कॉमन. टेन थीटा माइनस सेक थीटा ले लो कॉमन. टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अगर ये कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास बच जाएगा 1. सॉरी, ये प्लस क्यों लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में आएगा ना. हाँ, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस, क्योंकि इससे हमने माइनस कॉमन लिया है, इससे माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा था. ओके, तो माइनस कॉमन लिया, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, तो वो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बनेगा. ठीक है, चलो देखो क्या किया है मैंने, वरना फिर बोलोगे सर आधा अधूरा बताया. इसको लिखा माइनस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा. कोई दिक्कत, इसको मैंने कॉमन ले लिया माइनस 1. फिर ये टेन थीटा सेक थीटा यहाँ पर था, और ये टेन थीटा सेक थीटा यहाँ पर जो था, इन दोनों को बाहर ले लिया यहाँ पर. ठीक है, ये माइनस 1 जो मेरे पास है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे. जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस सेक थीटा आएगा, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन थीटा आएगा. ठीक है, नहीं तो फिर बोलते आधा अधूरा ही बताया है, भगा दिया बस. ठीक है, इसलिए नहीं भगा रहा हूँ. चलो ठीक है, अब क्या करना है हमें. हाँ देखो, ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन दिख रहा होगा. ठीक है, ऊपर प्लस में टेन थीटा है, प्लस में सेक थीटा है, माइनस में 1 है. ठीक है, ये दिख रहा है. ये देखो यहाँ पे ये प्लस में टेन थीटा है, ये प्लस में सेक थीटा है, माइनस में 1 है. नीचे में प्लस में 1 है, इसका उल्टा. यहाँ माइनस में सेक थीटा इसका उल्टा है, और यहाँ माइनस में टेन थीटा इसका उल्टा. समझ में आ रहा है, माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, किसमें, माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा. तो ठीक है, जब ये कैंसिल होगा तो ऊपर में माइनस 1 आएगा, और नीचे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा आएगा. ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. चलो स्पेस है ना, हाँ बहुत स्पेस है. चलो बनाओ अब यहाँ पर 1 बाय सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं. साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. हाँ ठीक है, चलो इसको अब लिखो ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा एलसीएम में, और 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा. ये 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है. ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ठीक है, इसको कर दो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, इसको कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से. रेशनलाइज करने आता होगा, 7th क्लास में सीखे होगे, वही यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस थीटा ऊपर में, तो ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा. ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट कैंसिल नहीं कराया, मतलब लिखा नहीं हूँ, वो देख लेना. 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS के इक्वल. ठीक है, चलो ये तो हमेशा आना है, मतलब 4-5 बार. देखो एक होता है समझ लो, तो अभी टाइम है समझ लो. ठीक है, लास्ट में नहीं भी समझ में आएगा, यही क्वेश्चन 4 बार बनाना, चल जाना बना करके. नंबर होते हैं जैसे भी आए. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री का प्योर एप्लीकेशन. ठीक है, चलो
वही करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी वही है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप्स ऑफ द बोथ टावर। चलो कुछ नहीं है, बहुत लंबा लिखा है, मुझे भी अभी उतना नहीं पता चला। मुझे बस इतना पता चला कि दो टावर है, एक के फुट से देख रहा है, दूसरे के फुट से देख रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा है। एक की हाइट पता है, दूसरे की हाइट निकालनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में कुछ बोला है, ठीक है देखेंगे अभी, उसमें मैंने भी ध्यान नहीं दिया है कुछ। चलो सबसे पहले तो डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डायग्राम ही होता है, ठीक है। और ये कंपेटेंसी में जब भी आता है तो 1 नंबर तो डायग्राम पे ही होता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया उसका एक थीमेटिक डायग्राम आप ड्रॉ करके बताओ कि वो दिख कैसा रहा है, ठीक है, उस पर 1 नंबर होता है। तो अब शुरू से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, ठीक है। तो हमारे पास एक टावर है जो कि 24 मीटर हाई है, ठीक है। ओके रुक जाओ, टावर टेढ़ा बन गया, ठीक है। ये 24 मीटर का हमारा टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 20 फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। एक और टावर है, अब एक और टावर है, ठीक है। अब ये बड़ा है या छोटा है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो मैंने दोनों केस बना दिया है, ठीक है। ये ज़मीन है, ठीक है, ठीक है। अब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पता नहीं है अभी। ऑन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, चलो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। अब देखो, देख के पता चल रहा है कि स्मॉलर वाला ही होगा सही, ठीक है। अगर स्मॉलर वाला सही नहीं होता तो, और अगर मैं ये वाला बनाता, ये वाला लाइन, ओके सॉरी, अगर मैं ये वाला लाइन बनाता तो ये 60 डिग्री से ज़्यादा ही होता, मतलब 30 से तो ज़्यादा ही होता, 60 से भी ज़्यादा होता, सॉरी 60 से भी ज़्यादा होता, ठीक है। इसलिए ये 30 होगा, इसलिए ये वाली टावर जो वो छोटा ही होगा, वो बड़ा वाला टावर सेकेंड केस कैंसिल हो गया, ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो ये वाला टावर हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वाला केस यही है हमारा, ठीक है ना। अब इसमें हमें 2 एंगल पता है, ये 30 डिग्री है हमारे पास और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर से हमारा ये डायग्राम बन गया, 24 मीटर बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े में बना के दिखाता हूँ, वो ना बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा, यहाँ से ये 60 डिग्री है और यहाँ से ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 60 है, ये 30 डिग्री है। ये हमारा 24 मीटर पता है। बस इसमें से हमें इस टावर की हाइट निकालने बोला है, ये डिस्टेंस निकालने बोला है, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप्स ऑफ बोथ टावर। तो दोनों टावर के टॉप पर जो ये लेंथ लगी है इसकी हाइट निकालने बोला, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो कहाँ थे हम, वो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा हम ये टावर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास 2 टावर है, एक का हमें पता है, दूसरे की हाइट निकालनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और उनके टॉप की जो है वो लेंथ निकालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इनके बीच के डिस्टेंस की या हाइट से, दूसरे की हाइट से, जो भी है कोई बात नहीं। इसकी हाइट h मान लो, ठीक है। डायग्राम जितना फ्रेश बनेगा उतना बेटर है। ये x मान लो डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब ये जो x है हमारा, x जो है अब किस ट्रायंगल से उठाना है, वो उस ट्रायंगल से उठाओ जहाँ तुम्हें कम से कम 2 तो इन्फॉर्मेशन पता हो। क्योंकि जब तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में किसी भी एंगल को लगाओगे, किसी भी tan sin कोई भी लगाओगे, तो तुम्हें कम से कम 1 तो पता होना चाहिए उसमें, मतलब सॉरी 2 तो पता होना चाहिए, तभी तो तीसरी चीज़ निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमें ये एंगल 60 डिग्री पता है, ठीक है, और ये 24 मीटर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ये सब कुछ भी नहीं है जो है वो डायग्राम है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है और डायग्राम कैसे बनेगा, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, ये सब सबको पता है अब आगे, ठीक है। ये हमारे पास x है, परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास, और tan है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस है तो tan 60 लगेगा, 24/x ईजिली सॉल्व हो जाएगा। √3 = 24/x, सो यू विल फाइंड दैट x = 24/√3 मीटर। I hope it is given in meter, okay, yeah this is in meter, so you will find the x, you find the x, okay। Now let's move to the next part.
अब एक्स पता है हमें और ये ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एक एंगल पता है, हमें ये डिस्टेंस पता है 24/√3 एंड ये एंगल हमें पता है, वी हैव टू फाइंड एच। ओके, हियर द सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड एच विच इज़ परपेंडिकुलर फॉर द ट्रायंगल। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है, मतलब एंगल के सामने जो एंगल आप ले रहे हो उसके सामने जो भी हो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, और ये बेस हो गया अपना, तो बस P/B लगा लो, tan 30 डिग्री 1/√3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज h/24/√3, √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/24/√3, √3 ऊपर चला गया, उधर हमारा tan 30 1/√3 हो गया। सो यू विल फाइंड दैट 24/3 इज इक्वल टू h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, तो ये 8 मीटर हमें पता चल गया। ना आपको कहा है उसके बाद ये ग्रीन लाइन की लेंथ निकालना है। ग्रीन लाइन की लेंथ मतलब ये लेंथ अगर हमें पता होगा, जो कि हमें पता चल जाएगा, ये हमें पता होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कर आराम से निकाल लेंगे। हमें टोटल लेंथ 24 पता है यहाँ से यहाँ तक की, और ये 16 है। ओके, सॉरी ये 8 है, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, और ये 24/√3 है, पाइथागोरस लगा लोगे, 16² प्लस 24/√3 का और इसका अंडर रूट कर लेना, ये लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, इरेज तो करना ही पड़ेगा मुझे, स्पेस का कांस्टेंट है ना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle of 60 degree at the eye of an observer. ठीक है, if the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that height of the center of the balloon is √2 times its radius. ठीक है, मुझे फिर से पढ़ने दो, देखो मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ इसको, इसलिए मैं फिर से पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ हमेशा टाइम लो, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, फिर बनाओ, वरना फिर वो मेहनत सब बेकार जाएगी। ये भी 5 नंबर का ही होगा, 33 नंबर पे तो 5 नंबर का ही होगा ये, तो क्यों फालतू का टाइम गंवाना, ताकि आंसर गलत निकले और फिर से फ्रस्ट्रेशन आए कि नहीं बना। टाइम ले लो आराम से, फिर बनाओ, 2-3 बार पढ़ लो। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर है, एक बैलून है रेडियस आर का, सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर की आंख पर वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, मतलब ये ऊपर है कुछ, ऑफ इट सेंटर इज 45 फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है वहाँ से सेम उसका, मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर का आँख है और यहाँ पे हमारा बैलून है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है और ये सेंटर वाला पार्ट है, तो ये जो है ये 45 डिग्री बना रहा है, और ये जो ऑब्जर्वर का आँख है इसमें ये 6, अच्छा इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, इसको ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब आगे क्या कह रहा है कि, और ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, वो कह रहा है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून √2 टाइम्स द रेडियस, मतलब ये हाइट कह रहा है, ये हाइट √2r है, ये प्रूव करने बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मतलब ये प्रूव करने बोला है, ये गिवन नहीं है, हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके ना, चलो हमारे पास 45 डिग्री और 60 डिग्री जो भी है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अब देखो ये सेंटर से जा रहा है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, ये तो पता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर लेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन रहा है ABOC। ठीक है, तो AOB AOC के सिमिलर होगा, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉरी आज मुझे 2 बार जगह चेंज करनी पड़ गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज तो लेक्चर अपलोड करके ही रहूँगा। ठीक है, ये वाली, चलो हाँ कहाँ था मैं, हाँ हमें हाइट निकालनी थी। ठीक है, तो अब ये बैलून को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, इस वाले बैलून को, ठीक है, ये हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये रहा, ये टोटल 60 डिग्री का है और ये हमारा आर है, तो ये पता है ये तो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर जो होता है वो सेंटर पे जो रेडियस होती है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है। और ये हमारी एक लाइन है जो सेंटर पर जा रही है, ये एंगल 30 हमें पता है और ये एंगल भी 30 होगा, ये हमें पता है, ठीक है। इसमें भी कोई बात नहीं है बड़ी बात, ये सिमिलरिटी ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। नाउ ये हमें आर पता है, ठीक है, ये हमें आर पता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अच्छे से देखो, ठीक है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक हमें साइड पता है और एंगल पता है। इसमें हम लगा सकते हैं आराम से निकालने के लिए कुछ भी, ठीक है, जो निकालना है निकाल लो इसमें से। हाँ, तो हमें चाहिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या है, ठीक है। ये अगर हमें चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो उसके लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी अपॉन साइन 30 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो आर अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2r, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2r, ओके। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, 2r, ओके। अब इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वैल्यू 45 है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये हाइट, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइट पता है, सॉरी हाइपोटेनस पता है, तो यहाँ पर भी हम लोग साइन ही यूज़ करेंगे, ओके। साइन 45 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन 45 इज इक्वल टू डेट वन हाइट परपेंडिकुलर अपॉन 2r, ओके। सो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, therefore p by 2r, so we can say from here that p is equal to 2r by √2, this is equal to √2r, okay. So this is the height of this and we have to prove that this is equal to √2r, then we have proved, okay. तो इसमें बस देखने का ही खेल है कि दिख कैसा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो इसमें है नहीं कुछ। अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कुल मिलाकर के इसमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 1 होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ 4 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 कितना होता है, 1/cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 2 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। प्लस पी इज इक्वल टू 3/4, 3/4 से तो 3/4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू 4 - 4, 0 आ गया, ठीक किया ना, कोई गलती तो नहीं की। कॉट 45 1 होता है, ठीक है, tan 45 1, कॉट 45 1, सेक 60 हो गया 1/cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का ये 2 हो गया, 2 × 4 हो गया, साइन स्क्वायर 60 √3/2, 3/4 पी, हाँ सही है, पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेना भी सही है, इजी क्वेश्चन है तो गलती ना हो। cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 है। चलो भाई निकालते हैं। cos a प्लस cos स्क्वायर a इज गिवन एज 1, ठीक है। हमें पहुंचना है साइन स्क्वायर a और साइन की पावर 4a पर, ठीक है। यहाँ पर cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a एंड 1 माइनस cos स्क्वायर फ्रॉम द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर लिख देते हैं। cos a इज इक्वल टू, अच्छा इसको साइन स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इतना भी शॉर्टकट क्या है जाना। चलो ये हो गया, साइन स्क्वायर की वैल्यू में पता चल गई, साइन की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर है, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो, देखो इसको ना ऐसे लिख के जोड़ते हैं, अगर स्क्वायर ऐसे किया है तो ऐसे क्यों करना है, ठीक है। चलो इसको ऐसे करो कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन की पावर 4 है। अब दोनों को जोड़ो, ठीक है, अब दोनों को जोड़ो, cos a प्लस cos स्क्वायर a
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। सो इसकी वैल्यू 1 दी थी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट्स कम टू दिस, ये 3 नंबर का होगा, 27 नंबर पे है तो ठीक है। 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये, तो ये LHS ले लो और ये RHS ले लो, अप्रूव करना है हमें। ठीक है, चलो पहले LHS ही लेते हैं, LCM ले लो। ऐसे दिक्कत सबसे पहले LCM लिया करो बिना सोचे डरे कुछ भी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इवेंचुअली क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ये हमारा आया क्या, LHS। ठीक है, RHS अब उठा लो, RHS में आते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, 1 बाय tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लो। ठीक है, ये लिखने के बाद ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, सॉरी LCM ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, LCM लेने के बाद इक्वल टू दे दो बगल बगल में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहाँ है, अच्छा ऊपर है ना। चलो क्या कह रहा है, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, एक तो एक काम करो कि सॉल्व कर लो। ठीक है, उतना क्यों माथा मारना है, एक एक ऑप्शन लेके सॉल्व कर लो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है कि कॉट थीटा में रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा करना है, चलो करते हैं एक्सप्रेस सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, सॉरी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, चलो भाई उठाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई मतलब नहीं बनता है, साइन थीटा से कटेगा, ये नहीं आएगा, हटाओ। इसमें आ जाओ, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। अब इसको आ जाओ, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पहले उठा लो, ये उठा लो C नंबर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो सकता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इरेज कर लेने दो। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, एंड इसको कॉसेक थीटा लिख लेंगे डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। लो MCQ में देखो, मेरा ऑब्जर्वेशन आज तक जितना रहा है कि सी ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। ऐसा कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी तो 1/4 होती है, ABCD सब की, लेकिन स्टिल अगर तुमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, 5 बचा हो, तो अलग अलग मत मारने लगना कि एक में A मार रहे हैं, एक में B में, एक में C में, नहीं। या तो सब में A मारना है, या सब में B मारना है, या सब में C, या सब में D। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुमने जो भी 15 बनाए हैं वो सारे सही हैं, तो उसमें गिन लेना सबसे ज़्यादा कौन से टिक हुए हैं। अगर उसमें सबसे ज़्यादा मान लो A सही हुए होंगे, कि तुमने A वाले वहाँ टिक किए हैं 4, तो वो जो लास्ट के 5 बचे ना, उसमें A टिक मत करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि 20 में से 5 तुम्हारे सही होने थे A वाले, और 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब इसमें से कोई एक ही A सही होगा, तो और कोई उठा लेना इसमें से। ठीक है, B मार लेना, लेकिन सब में एक ही मारना कोई। ठीक है, छोड़ के तो मत ही आना, लास्ट में नहीं बचे सब में भरने लग जाना C। मैं तो C ही मारता हूँ। ठीक है, मेरे पास लास्ट में कुछ नहीं समझ आता, मैं C ही टिक करता हूँ। ठीक है, बेस्ट है, छोड़ने से बेटर है, क्योंकि वहाँ देखो 1 नंबर में तुम्हारा कोई नहीं देख रहा कि तुमने क्या किया है इस कैलकुलेशन। ठीक है, वो बस ऑप्शन देखते हैं, सही होगा तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है भी नहीं कि गलत हो जाएगा तो कट जाएगा माइनस 1, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इवेल्युएट करने बोला है, कॉस स्क्वायर 60, ये सब की वैल्यू पता है, पुट कर दो, अभी ये नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, इस पे आते हैं।
ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, देखो पहले ही लिखा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ए एंड बी लाइज बिटवीन 0 to 90। ओके ना, ये कंडीशन दे दिया हमें। फिर कह रहा है कि डेट साइन ए माइनस बी इजकल टू 0 एंड 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 1 इजकल टू 0, फाइंड द एंगल ए एंड बी। चलो यहाँ पे दो चैप्टर है हमारा, पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, साइन ए माइनस बी इजकल टू 0, ठीक है। साइन 0 कब होता है? साइन 0 होता है 0 डिग्री पे होता है। इससे आगे भी होता है, ऐसा नहीं है, इससे आगे भी होता है साइन 0, ठीक है, 180 पर भी होता है, बट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी जब 0 से 90 के बीच में है, ए और बी 0 से 90 के बीच में है, तो ए माइनस बी ऑब्वियसली है कि वो 0 से 90 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो 90 से ऊपर हमें नहीं भागना है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। हम इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने वाले लिखते हैं दिस इम्प्लाइज डेट, ये क्या बताता है? ए माइनस बी की वैल्यू है हमारी 0 डिग्री। ये हमारी है पहली इक्वेशन, ठीक है ना। 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 1 इजकल टू 0, देन हाँ दूसरा इक्वेशन हमें दिया है, क्या लिखा है कि 2 कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, अगर ए और बी की वैल्यू 90 से ही कम होगी, ऑब्वियसली इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो कभी 180 नहीं आएगा, ठीक है, 180 से वो कम ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर ही वही हाल है। अब कॉस ए प्लस बी, अच्छा इसको ना ऐसे लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो कॉस कहाँ 1/2 होता है? कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 √3/2, कॉस 40 45 1/√2, कॉस 60 1/2। तो ए इसको क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/2। सो व्हाट वी इन्फर फ्रॉम द अबव टू, वी कैन से डैट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने ऊपर देखा तो ये समझ में आया कि ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। चलो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को अभी एक जगह पे लिखो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा डिग्री लिखने मत भूलना ऊपर, ठीक है। ऐड कर दो, ऑब्वियस सी बात है, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, यू विल फाइंड दैट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड आफ्टर पुटिंग यू विल फाइंड दैट b इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। a और b बराबर ही है, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ और कुछ है? नहीं है ना, ऊपर आ जाओ। क्या लिखा है देखो, ये ऊपर वाला जो प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इजकल टू 10 ए, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखना कि बहुत मतलब ये देखो जनरल मिस्टेक है, सबसे होता है, पर तुम मिस्टेक 0 नहीं कर सकते, पर उसको कम तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है। बहुत बार कोई क्यूब की जगह स्क्वायर लिख देता है कैलकुलेशन करने के टाइम पे, होता है ये सबसे होता है, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। मेरे से भी होता था, पर प्रैक्टिस करते करते इसको बस कम कर सकते हैं, तो कम कर लेना बिल्कुल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो यहाँ पर भी कुल मिला के अलजेब्रा ही है और कुछ नहीं है, जितना अलजेब्रा तुम्हारा स्ट्रांग है उतना बेटर है, ठीक है। चलो तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास? साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्वेश्चन तो सही उतार लूँ, पता चला पूरी मेहनत की, क्वेश्चन निकला। हाँ ये भी बता देता हूँ, मैथ में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, पहला काम। दूसरा क्वेश्चन समझना, उसके अकॉर्डिंग डेटा उतारना। तीसरी चीज़, डेटा फिर से पहले वेरीफाई करना, बाद में सॉल्व करना। वेरीफाई ज़रूर करना डेटा, वरना पता चला पूरा सॉल्व कर रखे हैं, फिर जब से एक बार चेक करने बैठे तो पता चला ओह यहाँ पर तो 60 डिग्री दिया था और मैं 30 डिग्री लेके बना रहा हूँ। 60 डिग्री की वैल्यू साइन की 1/√3/2 होती है, मैं इसको 30 डिग्री समझ के 1/2 लिख के बैठा हूँ, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, वरना वो मेहनत बेकार है ना, फिर समझ लो। 2 cos क्यूब है माइनस कॉस है, 2 cos क्यूब है माइनस कॉस है, ठीक है। ऊपर दिख रहा है, सब चीज़ दिख रहा है, LHS मैंने उठा लिया है, सब चीज़ दिख रहा है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। ये फिर से नाटक स्टार्ट कर गया ये, अच्छा कोई बात नहीं, चलो जब तक चलेगा चलेगा। साइन ए कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉमन 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1,
ठीक है, साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ से अगर किसी को कुछ समझ नहीं भी आ रहा ना, इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें tan ए प्रूव करना है किसी भी चीज़ को, और यहाँ पे मेरा साइन ए अपॉन कॉस ए आ चुका है, मतलब यही हमारा tan ए देगा, बाकी ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने वाली है, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा। अब कैसे होगा यही तो दिमाग लगाना है बस, ये अप्रोच है, ठीक है। कोई वहाँ करके बैठा नहीं होता है, ये बस जैसे देखोगे अच्छा tan है, ये तो tan है मेरा स्टार्टिंग में ही आ गया। अब बस मतलब ये वैल्यू हमारी 1 होनी है, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होगा, बस उसी में अब कुछ ओल झोल करना है, तोड़ मरोड़ करना है, ठीक है। चलो करते हैं। हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पता है हमें कितना होता है, जब भी साइन स्क्वायर और 1 देखो, कॉस स्क्वायर और 1 देखो कहीं पे, तो ये वाली चीज़ तो हमेशा काम आएगी, ठीक है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए को tan ए लिख दिया, और इसमें लिखने की अब कोशिश करते हैं। क्या हमारा 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वरना वो स्क्रीन के बाहर चला जाता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 1 है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलो हो गया हमारे पास, तो इसको करो सिंप्लीफाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, ये tan है, देख लो ये पूरा का पूरा ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया tan है, tan है हमारा क्या था, RHS था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ बनाते बनाते मतलब समझ में आती है कि जब मुझे ये चीज़ मिल गई है, मतलब ये हमारा हो जाएगा काम ख़त्म, हमें बस इस पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इजकल टू 1, तो इसको 1 प्रूव करना है, ठीक है। चलो सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन पहले 1 माइनस साइन ए को तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकते अभी, इसको छोड़ दो। सेक ए प्लस tan ए को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। हाँ यहाँ से काम हो गया अपना, देखो ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, वही चाहिए था ना, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे उतार देना है, ठीक है, इनटू में, ठीक है। क्या आएगा हमारा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। सेम चीज़ उतारना क्या, मैं उतार ही देता हूँ वरना फिर कोई गुस्सा हो जाएगा कमेंट में, ठीक है ना। सेक ए 1 माइनस साइन ए, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे में भी हमारा कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। जैसे कि 1 बाई कॉस ए हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा RHS है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर का, हाँ 3 नंबर का था, चलो ज़्यादा कुछ था नहीं। चलो 5 नंबर में आ गए हैं, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है, टावर पे जाके ख़त्म हो जाता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व्स 2 कार एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द on the same side of the tower, find the distance between the two cars, use under root 3 equal to 1.73, ये हमें यूज़ करना है। चलो ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। A straight highway leads to the foot of tower, ठीक है। इसका कहने का मतलब एक हाईवे है, वो सीधा जा कर के, मतलब इसके जैसे जाते जाते सामने में हाईवे के बीच में ही एक टावर खड़ा है, ठीक है। होगा कोई जगह जहाँ बीच में ही हाईवे के टावर बन रखा है, ठीक है। इसको इमेजिन कर सकते हो तुम ऐसे कि जब तुम अपने घर की गली में घुसते हो, अपने घर वाली गली में घुसते हो ना, सामने में रोड के बीच में एक टावर खड़ा है, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करो, ये तुम्हारा गली है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घर, यहाँ बीच में यहाँ पर एक टावर ऐसे खड़ा है, ठीक है। ये तुम्हारा टावर है 3D में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये घर वर होंगे तुम्हारे कुछ भी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घर होंगे, यहाँ पे किसी की बालकनी होगी, तो यहाँ पर एक टावर खड़ा है, ठीक है।
यहाँ पर दो कार आ रही है, एक कार यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ पर है, और दोनों देखो एक ही साइड पर है टावर के, मतलब टावर के एक साइड ये हो गया, इस साइड रोड आएगा, और एक साइड ये हो गया, दोनों एक ही साइड है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, पता नहीं इसको कोई होगा शौक टावर पे बैठने का, ठीक है। तो यहाँ पर से ये देख रहा है, तो दो एंगल बन रहा है, इसको देख रहा है। तो अब इसको अगर फ्रंट व्यू में ऐसे बनाऊंगा तो नहीं समझ आएगा, लेकिन फ्रंट व्यू इसलिए मैंने बताया कि तुम्हें विजुअलाइज हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में फ़ोटो बने कि चीज़ चल कैसे रही है। इसको साइड व्यू से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम देखो अभी इस साइड से देख रहे हैं, तुम्हारी आंखें यहाँ पर है, यहाँ पर है तुम्हारी आंखें, ठीक है, यहाँ पर से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर से नहीं, अब हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से, ठीक है, हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है। इधर से देखेंगे तो ये टावर हमें यहाँ पर दिखेगा, ये गाड़ी हमें यहाँ दिखेगी, और ये गाड़ी यहाँ दिखेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन विप्रेशन वाली कुछ बात बोली थी, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। चलो, स्ट्रेट हाई वैल्यू से फुट अप ए टावर, ये रहा फुट अप टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर। चलो, इसकी हाइट दे रखी है हमें 75 मीटर, अच्छी बात है। ऑब्जर्व्स टू कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो, डिप्रेशन और एलिवेशन जब भी होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो एलिवेशन है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे में जाना होता है ना, तो ये तो गड्ढे में चला गया, नीचे आ गया मतलब गड्ढे में आ गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन एचएल, ठीक है। ये एलिवेशन है और ये डिप्रेशन है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी, आई साइट, ये कुछ ये होगी। तो इसके डिप्रेशन का कहने का मतलब है ये वाला डिप्रेशन और ये वाला डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर मुझे दो कलर यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, क्योंकि 60 ज़्यादा होता है, ठीक है। इसने लिखा नहीं है आगे पीछे का कुछ भी, लेकिन ये समझने पड़ेगी, ये समझना ही तुमको पड़ेगा, जो आगे होगा उसका ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है। Which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side, find the distance between the two car. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है और हमें यही निकालना है। What is the distance between them? X मान लो है, ठीक है। लेट ये वाली जो कार है A और एक कार है हमारे पास B। A वाली कार इस फुट अप टावर से है डिस्टेंस को क्या ले लूँ, Y ले लूँ, Y ले लेता हूँ, ठीक है। अब B वाली यहाँ पर से यहाँ डिस्टेंस पर है Z, ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर से Z है। तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हैं। अब ट्रायंगल में यहाँ भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है बहुत। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है अल्टरनेट ट्रायंगल ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। नो रॉकेट साइंस इज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। समझना था, फ्रंट व्यू बना के समझा दिया, फिर उसी फ्रंट व्यू को मैंने साइड व्यू में बनाया है, और इसी को बस दो ट्रायंगल हैं, तुम्हारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब दो ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये है अपना, दो इन्फॉर्मेशन पता है, 10 60 लगा लेना, Z निकल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ये हमारा है दूसरा ट्रायंगल, इसमें 10 30 लगा लेना, पूरा का पूरा Y निकलेगा, ध्यान रखना Y निकलेगा। एंड योर X विल बी इक्वल टू Y माइनस Z, ओके। ये तुम्हारा X निकल जाएगा। X क्या, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसमें से कुछ भी ज़्यादा नहीं था, समझ जाओगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। नाउ इरेज करना है क्या, इसको करना तो पड़ेगा, देखते हैं क्या है। फ्रॉम द दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक, ठीक है, पहले पूरा पढ़ते हैं, हमारा ये अप्रोच है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। कुछ नहीं है इसमें भी, बस डायग्राम पर कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है। बिल्डिंग टेढ़ी कैसे बन गई, ये तो गिर जाएगा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है क्या। ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है भाई। ये हमारी बिल्डिंग कुछ ऐसे से दिख रही है, ठीक है, खिड़की विड़की लगी है यहाँ पे, जो भी है, ठीक है। चलो, ये हमारी बिल्डिंग है और कह रहा है कि इधर ही बना ही देता हूँ, ठीक है, चलो जो भी है, ये हमारी बिल्डिंग में कह रहा है कि समेटर टॉप हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। जब ऊपर की तरफ देखेंगे, ये लॉजिक कहता है कि टावर जो है बिल्डिंग से बड़ी ही होगी,
तभी तो तुम ऊपर ऐसे करके देखोगे, आसमान ऊपर करके देखते हो, धरती नीचे देखते हो, तो आसमान तुम्हारे ऊपर है और धरती नीचे है, तो ये टावर भी इसके ऊपर है, ये वाली, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका टॉप का, ठीक है, टॉप का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, इसको मैं, ये इसका एंगल हो गया, ठीक है। और ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट का, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। चलो अब आते हैं, क्या रहा है, टॉप ऑफ ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है और ये डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। क्या पूछ रहा है ये, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक x है और ये यहाँ से यहाँ तक मान लो y है, y क्या मानना है, तो 7 मीटर ही होगा, इसमें क्या दिमाग लगाना था, ठीक है। ये देखो ये रेक्टेंगल बनेगा कोई एक, ठीक है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली, अगर ये लेंथ निकल जाएगी, ये तुम्हें पता होगा, तो ये जो ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, इसमें से तुम x निकाल सकते हो, tan 60 का निकाला आके, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी बन सकता है, इजी पीजी। 5 नंबर ये सब फ्री के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस तो फ्री का नंबर देके जाता है ना। MCQ पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है MCQ, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12, देखो फिर से वही आ गया, माइंड सेट ऑफ द CBSE, एक ही चीज़ घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी बताया था, बार बार स्कूपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ से निकाल रहे हैं, कहीं क्यूब से वो कौन निकाल रहा है, कहीं वो क्यूब से सिलेंडर निकाल रहा है, कहीं वो सिलेंडर है उसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल दे रहा है, गोल्फ बॉल है वहाँ से हेमिस्फीयर निकाल दे रहा है, वही कर रहा है वो, उसका वो फिक्स है, वो पूछना ही पूछना है उसको, और वो आज भी पूछ रहा है, कल भी पूछेगा, आने वाले टाइम में भी वो पूछेगा, उसका फिक्स है, ठीक है। तो इसका भी फिक्स ही हो गया है कि एक पूछना ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताना है क्या मेरे को, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, देखो ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय tan थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/12 + 1 इक्वल टू 17/12, 5/12 -1, तो 5 7 5 12 -7/12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 17/-7 दैट इज -17/7, ठीक है। कुछ नहीं था उसमें, मैंने इसमें इतना स्पेस दे रखा था, ओके। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू पुट कर लो, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, सेक स्क्वायर 30 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो जैसे करना है। 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, ओके सॉरी 1/√3 का स्क्वायर करना था, डायरेक्ट ही √3 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, 2/√3, 3 + 1 4 × 3, ठीक है। तो √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, ठीक है। चलो इन सब में इतना जगह छोड़ रखा मैंने। ये वाले भी क्वेश्चन आ जाओ। क्या कह रहा है कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू m, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्वेश्चन देखो और तुम्हें प्रूव क्या करना है वो देखो, सीधा सीधा लॉजिक लगेगा, बिना स्क्वायर किए तो ये हो ही नहीं सकता ये काम, तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो पेन उठाओ, तुरंत स्क्वायर करना स्टार्ट करो दोनों साइड। ये क्या लिखेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2ab cos थीटा साइन थीटा, 2ab cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में कह रहा है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, तो a cos थीटा था क्या, a साइन थीटा था, ठीक है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो, ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी हाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रुको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा वरना फिर वो, ठीक है।
इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से स्लो हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 पुट कर देना, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। नाउ प्रूव डेट अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस सेक ए। ठीक है, एक तो ये है कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ही ले लो, क्यों इतना माथा मारना है, ठीक है। एलसीएम ही ले लो, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। ऊपर में इसको ऐसे लिखो, अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अंडर रूट सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक ए माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लो ये पूरा का पूरा, अंडर रूट में सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, सेक ए प्लस 1 और अंडर रूट में ये तो मैं इसको डायरेक्ट पूरा अंडर रूट में ले रहा हूँ, सेक ए माइनस 1, ठीक है। और जब ऊपर लिखेंगे तो अंडर रूट सेक ए माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक ए माइनस 1 हो जाएगा सेक ए माइनस 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अंडर रूट सेक ए प्लस 1 हो जाएगा सेक ए प्लस 1, ओके प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, सेक ए को ए ले लो और 1 को बी ले लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब आइडेंटिटी पता ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये लैग कर रहा है, ठीक है। इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दो इसको टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो 2 सेक ए अपॉन में टेन स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट, अच्छा लिख देता हूँ मैं, टेन स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू 2 सेक ए अपॉन टेन ए, ठीक है, टेन ए। अब इसको करना क्या था मैं प्रूफ, 2 कॉसेक ए करना है, ठीक है। 2 तो आ गया हमारा, कॉसेक ए की बात है, ठीक है, हो जाएगा 2 अपॉन कॉसे, सेक ए को कॉसे लिख दिया और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉसे लिख दिया, ठीक है। तो कॉसे कॉसे कैंसिल हो गया और 2 अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू आवर RHS। ये सब तो बताइए कि ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक, चलो करते हैं इसको। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड में प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो टेन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिख करके अगर सेम एलसीएम ले ले तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो वही करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस टेन थीटा को, इस वाले को लिखूँगा मैं 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। इसको 1 बाय कॉट थीटा लिखूँगा और फिर यहाँ पे एलसीएम लूँगा और फिर इसको सेम करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, अच्छा ठीक है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिखा हूँ और मैं कॉट थीटा इसमें एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस कॉट थीटा को ऊपर ही भेज देता हूँ साइड में यहाँ पर लिख करके, ठीक है। ऊपर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉट थीटा माइनस 1, तो ये आएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है, कॉट थीटा माइनस 1। चलो ये हो गया अपना ना, इधर जगह नहीं है, इधर ही आ जाओ, अच्छा यहीं पर लिखते हैं ना, उल्ट इधर उधर जाते हैं कि इधर ज़्यादा इधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें से एलसीएम लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा,
1 माइनस कॉट थीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारा tan थीटा, ठीक है। और जब 1 माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है, इतना तो बना ही चुके हैं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan थीटा को sin थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर बाई साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। sin थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलो तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में ऊपर की बात करो, न्यूमरेटर की। तो कॉस इंटू साइन स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा तो इधर साइन क्यूब आ जाएगा, इधर माइनस कॉस क्यूब आ जाएगा, और होल डिवाइडेड में 1 माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, अलजेब्रा है टोटल, ठीक है। उसको लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू, अच्छा मैं ऐसे जा रहा हूँ फिर यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मत बनाना, ठीक है। मेरे पास मतलब कांस्टेंट है, वो पेन भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे एस माइनस सी, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख देता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग ऐसा और सी मत लिखना, वो कॉस थीटा और साइन थीटा ही पूरा लिखना, ठीक है। वो मैं उतना लिखना नहीं चाह रहा हूँ। अब फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं एस माइनस सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर था हमारा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस था, और नीचे डिवाइडेड में अपना कॉस इंटू साइन स्क्वायर था। और ये जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा नीचे साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम लेने पर, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो चलो, अब क्या कह रहा है ये करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉस, तो साइन कॉस से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देंगे, ऊपर जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं पूरा चक्कर मार के ही मानूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल होल साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिख रहा हूँ 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये मैंने चक्री मारी है, ठीक है, चक्री मारी है, मतलब ऐसे इधर से ऐसे गया हूँ, ऐसे आया हूँ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे आगे, ऐसे गया, ठीक है। ये सही था। चलो कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री while another observer 100 meter away estimates the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the basket from the ground, the distance of the basket from the first observer's eye, the horizontal distance of the second observer from the basket. ठीक है, चलो कुछ अभी बोला है इसने, उसको पहले पिक्चर में बनाते हैं। कह रहा है कि वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री, ठीक है। हॉट एयर बलून होता है ना, एक ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे लगे होते हैं और ये हमारा बलून का बास्केट बना होता है, ठीक है, ऐसा सा होता है कुछ, ठीक है। ये हमारा हॉट एयर बलून है हमारा, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले लो इसमें से, पूरा बलून मैं कंसिडर नहीं कर रहा, बोलना मत सर उसका एंगल अलग दिखेगा, ऊपर का और नीचे का अलग दिखेगा, नहीं, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर वो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को देख रहा है वो, ठीक है, मतलब बलून को पॉइंट सोर्स मान रहा हूँ, वो पॉइंट है बिल्कुल। और इस ज़मीन पर
हमारे 2 गोलू मोलू खड़े हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर खड़ा है और वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से, ठीक है, और वो यहाँ पर खड़ा है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री से। ऑब्वियस सी बात है जो 30 डिग्री वाला है वो पीछे होगा, क्यों, एलिवेशन वाला एंगल कम हो गया है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये तो देख के ही पता कर लोगे। ये 60 डिग्री है अपना और ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। इसमें बोला क्या है इसमें कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है, ये 100 मीटर है, ठीक है ना। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है, ठीक है, ये हाइट निकालनी है हमें, ये हाइट। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर, दैट इज इक्वल टू एक्स। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, एंड दिस इज इक्वल टू वाई, ओके। सो वाई इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, वी हैव टू फाइंड एक्स एंड एच। नाउ हमारे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम बन गया तो सब चीज़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनने के बाद सभी चीज़ें, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स, लिखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स, देयरफॉर वी गेट दैट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, देयरफॉर h इज इक्वल टू x√3, ओके। नाउ इन सेकेंड इक्वेशन tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, h अपॉन 100 प्लस एक्स, द बेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर द 30 डिग्री एंगल is equal to 100 plus x and perpendicular will be the h, okay. So tan 30 is equal to h upon 100 plus x, ठीक है, 100 plus x। now इसको लिख सकते हैं 1/√3 is equal to 1/√3 क्यों लिखना है, 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो ना, is equal to h, ठीक है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, एक h की वैल्यू x√3 बता रहा है, एक h की वैल्यू 100 प्लस x बाय √3 बोल रहा है, तो दोनों में h की वैल्यू तो बराबर ही होनी है, ऐसा तो है नहीं कि एक देख रहा है तो कुछ अलग दिख रहा है, दूसरा देख रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, x√3 इज इक्वल टू 100 प्लस x बाय √3, ओके। h की जगह x√3 पुट कर दिया, ठीक है ना। 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x, ठीक है, प्लस x। नाउ 2x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 50। ये बहुत लैग कर रहा है, इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 मीटर आ गया हमारा, उसके बाद x 50 आ गया तो h इज इक्वल टू 50√3, पहला आंसर निकल गया, ठीक है। h इज इक्वल टू 50√3 आ गया अपना, तो पहला क्वेश्चन था हाइट ऑफ द बास्केट, h इज इक्वल टू 50√3, ठीक है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड फर्स्ट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू x, हमने निकाल लिया है, x की वैल्यू अपना कितना आया भाई, 50 मीटर आया, ठीक है। सब मीटर में आया, जो भी है मीटर लिख देना आंसर में, यूनिट कभी मत छोड़ना, वरना यूनिट में याद है 1 नंबर कट जाते हैं लास्ट में फिर, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है मैंने 50 मीटर, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। चलो आज इतना ही कर रहने देते हैं, ठीक है, वरना फिर क्लास ही बहुत लंबी हो जाएगी। चलो बाय बाय, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक, कमेंट भी कर देना, और भी कुछ रह गया हो तो वो भी होता होगा, अगर कुछ और तो मुझे तो नहीं पता, शेयर मेंशन कमेंट जो भी होता है, ठीक है। चलो बाय बाय।